है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Hello guys, I welcome you all to this exclusive session of Ved Science. I hope you all must be having a great time. So please do subscribe to our channel, that is Ved Science, and you can hit the bell icon for the regular updates. So I'm Gaurav from Ved Science. Now, a nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. And this is the famous quote by महात्मा गांधी जी. तो आज जो टॉपिक है, हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर के आपको बहुत ही मजा आने वाला है. आप लोगों ने बहुत सुना होगा मैथ्स ओलंपियाड, आप लोगों ने सुना होगा साइंस ओलंपियाड, सोशल साइंस ओलंपियाड एंड सो ऑन. देयर आर लॉट ऑफ ओलंपियाड्स, बट आप लोगों ने हेरिटेज ओलंपियाड के बारे में पहली बार सुना होगा. एंड दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑल इंडिया लेवल पे ये एग्जाम होता है, दैट इज हेरिटेज ओलंपियाड. तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इट कॉन्स्टिट्यूट्स. नाउ व्हाट इज हेरिटेज? हिंदी में आप इसको विरासत भी बोल सकते हैं, धरोहर भी बोल सकते हैं. So basically the culture and the tradition which has been preserved for many years, and the story of Indian art and architecture is a story of evolution which can be traced from the Harappa Valley civilization to the British rule. तो ये जो एग्जाम है ये हमें ग्लिम्स देता है कि कैसे हमें अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना चाहिए, एंड वी आर वेरी क्लोज टू इट. Now, what is it? What exactly this Olympiad is all about? So this is the first, actually India's first online Olympiad on culture and heritage, which has been introduced to sensitize young aspiring youths of India. All right, to just to actually sensitize young mind to India's rich and multifaceted cultural heritage. तो जितना भी हमारा ट्रेडिशन है, जो भी हमारा कल्चर है, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, कुछ भी मतलब हेरिटेज से रिलेटेड या ट्रेडिशन से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड कुछ भी, जितना भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें इस ओलंपियाड में पूछी जाती हैं. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस एग्जाम के माध्यम से. सो दिस इज व्हाट. Now, this is the marking scheme of this exam. You have different levels, that is group 1, 2, 3 and 4. Now in group 1, there are total 100 questions which constitutes 100 marks. Followed by group 2, 3 and 4, there are 150 questions in all three groups and carry 150 marks. So this is the marking scheme. Now what is the interesting fact about this exam is, you have three main areas, that is intangible heritage, tangible heritage and natural heritage. Now what is intangible heritage? Intangible heritage वो heritage है जिसको आप महसूस करते हैं, जिसको आप फील करते हैं. म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट फॉर्म. ओके, सो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रोमांटिसिज्म, जो यूरोप में एक मूवमेंट था, एक कल्चरल मूवमेंट था, रोमांटिसिज्म. ठीक है. सो intangible heritage basically constitutes the इमोशंस, द फीलिंग्स जिसके साथ आप जुड़ते हैं. ऑलराइट, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट. एंड देन यू हैव टैंजिबल हेरिटेज. व्हाट इज टैंजिबल हेरिटेज? यू हैव वेरियस मॉन्यूमेंट्स, वेरियस आर्किटेक्चर. ओके, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आपने सुना होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रेड फोर्ट, यू हैव ताजमहल, बीबी का मकबरा, एलोरा caves, Ajanta caves. So these are tangible heritage. Then you have natural heritage. What is natural heritage? You have wildlife, you have flora and fauna.
For example, Kaziranga National Park, which is famous for one-horned rhinoceros. Then you have Kebul Lamjau National Park. It is in Manipur and it is situated in the middle of Loktak Lake. And it is the only national park in the world which is floating. The only floating national park in the world. Kebul Lamjau National Park of Manipur, जो कि लोकतक लेक के बीचों बीच स्थित है. Okay, so these constitute the natural heritage. Then you have overview of this exam. Now the marking is based on adaptive methodology, where the Olympiad is divided into 3 difficulty levels. Now there are difficulty levels, all right. So the beginner level is 0.5 marks per question, intermediate level constitutes 1 mark per question, and the advanced level constitute 2.5 mark per question. Okay. And the duration of this exam is for 1 hour, and the score shall be calculated based on the number of questions answered within that hour. तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल. नाउ करिकुलम. द करिकुलम फॉर द हेरिटेज ओलंपियाड इज ब्रॉडली अलाइंड विद द करिकुलम एंड सिलेबस फॉलोड बाय द मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल बोर्ड्स. तो जितने भी मेजर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका करिकुलम सेट किया गया है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को हो गया एंड सो ऑन. नाउ it also integrates the concepts of global citizenship and sustainable development goals. Citizens को पता होना चाहिए, हर नागरिक को पता होना चाहिए कि there are 17 sustainable development goals और उस गोल को कैसे अचीव करना है, कैसे हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है फॉर देयर बेटर फ्यूचर, ठीक है. तो ये सभी को पता होना चाहिए. And the environment and sustainability. Now it is the responsibility of every citizen to preserve its environment, to have compassion for the wildlife. ठीक है. तो उनके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे हमने अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना है, उनको संभाल करके रखना है, और अभी तक ये हम करते हुए आ रहे हैं. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Now you have fundamental duties with respect to it, that is part 4A of the Indian Constitution constitutes Article 51A, ठीक है, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता रखा है. Earlier there were 10 fundamental duties, but one more was added, so now there are 11 fundamental duties. तो उनमें से एक ये है कि आर्टिकल 51AF क्या कहता है. 51AF टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर. जो अपना कल्चर है, जो अपना ट्रेडिशन है, उसको वैल्यू करना है और उसको प्रिजर्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड आर्टिकल 51AG बोलता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. तो इन सभी चीजों को, इन सभी नेचुरल एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है. इसके साथ हमें यू नो वी शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है. एक भावना होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए लिविंग क्रिएचर के साथ, उनको वैल्यू करना चाहिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड दिस एग्जाम, ये जो इस एग्जाम की खासियत है वो ये है कि इट इज ओपन फॉर ऑल, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर हेरिटेज एंथुसियास्ट, आई मीन फॉर एवरीवन. एंड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड एट 4 levels, that is group 1, 2, 3, 4. we have discussed earlier, all right, in my second or third slide. So group 1 constitute class 5th, 6th and 7th student, and group 2 constitutes class 8, 9, 10 student, followed by group 3 class 11th and 12th student separately, and group 4 undergraduate, graduate student and heritage enthusiast. यानी कि ये सबके लिए ओपन है, ठीक है. सबके लिए ओपन करने का कारण ये है कि ये एक ऐसी थीम है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए. So this is what it constitutes. All right. Now there are major domains. Now what are the major domains? You have histories. You have built spaces. Histories में जो आपका हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन है, फिर आपका जो मिडिवल इंडिया का पार्ट है, फिर जब ब्रिटिशर्स का पार्ट आता है तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. Then you have built spaces such as you can see this beautiful image of रानी की वाव. Okay, रानी की वाव जो कि गुजरात में है, and it's a step well. ये जो कुआं है उस कुएं में स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं. Okay, so this is the UNESCO World Heritage Site. It has been listed in the UNESCO World Heritage Site.
एंड ऑल्सो दिस इज इन गुजरात। और आपको पता होगा कि अगर आपने 100 रुपए का नोट देखा है, ठीक है, तो जो 100 रुपए का नोट है, जो 100 रुपीज का नोट है, उसके ऊपर ये रानी की वाव बना हुआ है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। देन यू हैव पीपल, यू हैव many intellectuals, for example Rabindranath Tagore, you have Abindranath Tagore, you have Bengali Venkaya, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, बहुत सारी लेक्स हैं, वुल्लर लेक है, डल लेक है, ठीक है, चिलिका लेक है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। देन यू हैव विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। आपने विद्युत जामवाल के बारे में सुना होगा, जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, एंड उन्होंने एक कला सीखी है, एक मार्शल आर्ट सीखा है, कलारिया पट्टू। तो कलारिया पट्टू जो है ये केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है और बहुत मेहनत लगती है इसमें और काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है उसमें। तो कमांडो मूवी में वो आए थे और बहुत ही अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी। तो बहुत सारे वेरियस परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। Then you have practices and rituals. You have various rituals, various practices, religious beliefs and all system. तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। And you can also see this beautiful image of बिहार, जो कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में ये इमेज है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स नेचुरल होते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ फेमस इन मिथिला रीजन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि हमारा कल्चर क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। नाउ दीज आर द वेरियस सोर्सेस फॉर दिस एग्जामिनेशन। यू हैव एनसीईआरटी क्लासेस 5th to 10th, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लास 5वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। Then NCERT classes 11th 12th, all right. You have knowledge tradition and practices of India, living crafts traditions of India, 11th 12th की जो NCERT है, all right. Then you have crafts of India, handmade in India, edited by Aditi Ranjan and MP Ranjan. तो ये काफ़ी बुक्स हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। और बाकी जो वेद साइंस है आपको एक अलग से कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड करेगा। हम लोग वीडियोस लेकर के आएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी ये स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो टिल देन आई विल टेक योर लीव। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे।